Beautiful good morning to class 10 biology students. Now I am again with you to show you the structure of kidney as well as what is the functioning of kidney, how it purifies our blood which comes with the help of the renal artery into our system. Previously we have discussed about the excretion in human beings as well as the diagram of human excretory system. Now I am going to discuss the main part of the human excretory system, that is kidney. So we are starting from the diagram. So the outermost covering of the kidney is known as capsule. Okay, it is known as renal capsule. Remember this thing, whenever the word come that is renal, it means we are talking about the kidney. Whenever the word come pulmonary, it means we are discussing about the lungs. तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ये शो करते हैं हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. तो renal वर्ड जब यूज हो रहा है, it means we are going to discuss about the kidney के बारे में बात कर रहे हैं. The outer part of the kidney is known as the renal cortex and the innermost part is known as the medullary pyramid. उसको कहते हैं renal medulla and these bifurcations are known as medullas, medullary pyramids. Okay, now for your convenience, आपकी स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए इन्होंने किडनी की एक स्ट्रक्चर को, एक पार्ट को, एक यूनिट को शो किया है, दैट इज नेफ्रॉन. Now you can see in the diagram that there is a tuft of capillaries. एक गुच्छा है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का. This tuft of capillaries is known as glomerulus, which is covered by a cup-shaped structure. जो एक cup-shaped structure से covered है, it is known as Bowman's capsule. And from this Bowman capsule, a tube arises. एक ट्यूब निकली हुई है. This is known as tubule. And all these three structure combinedly make a unit of kidney that is known as nephron. Actually, every kidney is made up of million of nephrons, but for your convenience, for your studies, diagram will be very simple. एक ही नेफ्रॉन को शो किया गया है यहाँ पर. So there are so many these type of nephrons in our kidney which filters our blood, जो हमारे ब्लड को क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं. Now you can see this glomerulus is connected with the renal artery. ये जो glomerulus है वो किससे connected है, renal artery से connected है. It means यहाँ पर क्या आ रहा है, impure blood आ रहा है. renal artery के help से क्या आ रहा है, यहाँ पर impure blood ट्रांसफर होता है. एंड अनदर साइड ऑफ ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड विद अनदर कैपिलरी. एक और कैपिलरी से कनेक्टेड है जो कहाँ पर आकर जुड़ता है, आपका रीनल वीन में. इट मीन जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है तो वो कहाँ पर आकर जुड़ जाता है, इसकी जो कैपिलरी है वो रीनल वीन में, और वो प्योर ब्लड वापस से हमारे सिस्टम में मिल जाता है. जितना भी यूरिन बनता है, इट स्टार्ट टू कलेक्ट इन द यूरेटर बिकॉज किडनी इज कनेक्टेड इन द विद द यूरेटर. इट इज कॉल्ड द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि जितना ब्लड प्योरीफाई हुआ वो डक्ट में आकर कलेक्ट हो गया. इट इज गिवन टू द यूरेटर एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ द यूरेथ्रा द यूरिन इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी. So it is the structure of kidney. Now we will discuss the structure of nephron. अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर किसकी, नेफ्रॉन की, और ये भी बताएंगे हाउ द यूरिन इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में यूरिन बनता कैसे, इट मीन्स द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. You can see the diagram of nephron which is known as the unit of our kidney, जिसको हमारी एक्सक्रीटरी यूनिट या किडनी की यूनिट बोला जाता है क्योंकि मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स मिलकर हमारी किडनी बनाती हैं. तो यहाँ पर मैं सारे पहले पार्ट्स को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है. नाउ यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज और ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस. किससे कनेक्टेड है ये, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर रीनल आर्टरी से कनेक्टेड है. ठीक है, रीनल आर्टरी क्या लेकर आ रही है, यहाँ पर डर्टी ब्लड. नाउ दिस tuft of capillaries, it means glomerulus is covered by, is surrounded by a cup shaped structure which is known as Bowman's capsule, जिसको हम क्या कहते हैं, Bowman's capsule. Now from this Bowman's capsule a tube start to arise, जो आगे जाकर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाती है. This tube is known as tubule, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल बोलते हैं. Now you can see that one part of glomerulus is connected to the renal artery and another group of capillary arises from the another part of glomerulus. एक दूसरा कैपिलरी का वेसल का पार्ट है जो किससे निकलता है, ग्लोमेरुलस के दूसरे पार्ट से निकलता है. एंड इट सराउंड्स द होल ट्यूब्यूल, ये पूरी ट्यूब्यूल को क्या करता है, सराउंड करता है. एंड फाइनली कनेक्टेड टू द रीनल वीन एंड कैरी द प्योरीफाइड ब्लड, और जो ब्लड प्योरीफाई हुआ है उसको कैरी करके ले जाता है, हमारे सिस्टम में मिला देता है.
नाउ दिस ट्यूब्यूल, ये जो ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन की, इट कनेक्ट्स टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ये किससे कनेक्ट हो जाती है? यूरिनरी डक्ट से या फिर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट हो जाती है, जो आगे जाकर कहाँ मिलेगी? यूरेटर में मिलेगी। यूरेटर कहाँ मिलेगा? यूरेथ्रा में, और वहाँ से यूरिन रिमूव हो जाएगा। एक्चुअली मैं ये जो डायग्राम आपको शो कर रही हूँ वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल से शो कर रही हूँ। जब हम 11th में इसको पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, तो और ज़्यादा डीप हम इसको इस सारे पार्ट्स को मैं बताने वाली हूँ 11th स्टैंडर्ड की जब वीडियो बनाऊंगी। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग मैं आज इसको समझाने वाली हूँ। तो जो 11th के स्टूडेंट्स उसको देख रहे हैं वो केवल बहुत सिंपली आज इसको समझ सकते हैं, लेकिन जब मैं 11th स्टैंडर्ड की वीडियो बनाऊंगी तो और डीपली आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। हम अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली द इम्प्योर ब्लड, इट मीन्स द डर्टी ब्लड कमिंग टू द ग्लोमेरुलस। जो डर्टी ब्लड है वो कहाँ पर आता है? ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस में आने के बाद इसका होता है फिल्ट्रेशन, या हम इसको कह सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कैसे? कि जो ब्लड आया उसमें लार्ज पार्टिकल्स भी हैं, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स में। इट मीन्स द डर्टी ब्लड कंटेन्स impurities as well as some pure things which have the large or small particles. Okay, now there are three membranes, 3 membranes हैं जिनसे ये छनेगा ब्लड। फर्स्ट इज द एपिथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की एपिथीलियम। ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसकी ये लेयर, एंडोथीलियम, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 मेम्ब्रेन से आकर ब्लड छनता है, और छनने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो यहीं पर रह जाते हैं ग्लोमेरुलस में। जैसे कुछ लार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स रह जाते हैं, लार्ज लिपिड पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो यही रह जाएंगे। और बाकी जो सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? आपके ट्यूब्यूल में। अब उन सॉल्युबल पार्टिकल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, वाटर प्रेजेंट है, साल्ट प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है क्योंकि आसानी से वाटर में सॉल्युबल होती है। लार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, छन के कहाँ जाते हैं? आपके ट्यूब्यूल में। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। यहाँ पर मैंने एरो बना रखा है, इट मीन्स जो ये फिल्ट्रेट आया वो कहाँ आ रहा है? ट्यूब्यूल में आ रहा है। लेकिन ट्यूब्यूल किससे कनेक्टेड है? आपकी कैपिलरी से। इनको बोलते हैं हम PCT, PTC, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज का बेटा, इट मीन्स जो ट्यूब्यूल को क्या करी हुई है? पूरी तरफ से घेरे हुई हैं। अब ये जो सारी चीज़ें इस ट्यूब्यूल में आई, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर, यूरिया, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट है, और एक्सेस में वाटर है तो वो भी नहीं जाना चाहिए हमारी बॉडी में, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इन पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का काम है कि जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज हैं इस फिल्ट्रेट में उनको क्या कर लेना? रीएब्जॉर्ब कर लेना। इट मीन सेकेंड स्टेप आ गया अब हमारी यूरिन फॉर्मेशन का। पहला स्टेप क्या था? फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब दूसरा स्टेप आ गया रीएब्जॉर्प्शन। इट मींस दोज इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट, दे आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज क्या कर लेंगी? उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगी, जिससे सारी इम्प्योरिटीज जो हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी। सारे प्योर मटेरियल वो कहाँ मिल जाएंगे? आपके प्योर ब्लड में, जिसको रीनल वेन ले जाएगी। यहाँ पर एक थर्ड स्टेप और है जिसको हम कहते हैं सिक्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्योर पार्टिकल्स, इम्प्योर पार्टिकल्स भी हमारे वापस चले जाते हैं, कुछ आयंस हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो लास्ट पार्ट है हमारी ट्यूब्यूल का, वहाँ से क्या होता है? वो उसको ऐसे कुछ आयन सिक्रेट करती है इसमें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते। मैंने इसको ज़्यादा इसलिए नहीं बताया यहाँ पर सिक्रेशन को, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा सिक्रेशन को हमें नहीं समझना है डीप में। जब 11th की वीडियो होगी तो उसमें हम सिक्रेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि कौन से आयन की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, कौन से आयन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फाइनली जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है तो जो प्योरिटी है, जो प्योर ब्लड है, वो तो रीनल वेन में चला गया। अब जो इम्प्योरिटी है सारी, ठीक है, वो यहाँ पर आकर आपकी कलेक्ट हो गई। अब इम्प्योरिटी में वाटर है, कुछ वेस्ट साल्ट्स हैं और यूरिया है, सॉरी इट इज़ यूरिया। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? यूरिन बनाती हैं। ये पूरा यूरिन कहाँ कलेक्ट हो जाता है? आपका यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में, जो यूरेटर में जाता है, और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो बेसिकली 3 स्टेप्स आर देयर। 3 स्टेप हो गए यूरिन मैकेनिज्म में, यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म में। सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा वर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत फाइन फिल्ट्रेशन होता है। सेकंड स्टेप है आपका रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तीसरा है सिक्रेशन, जिन आयंस की जरूरत होगी वो रह जाएंगे और जिन आयन की जरूरत नहीं होगी वो सिक्रेट कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे बॉडी से। तो ये 3 स्टेप है जिनके थ्रू क्या होता है?
formation of urine. So we have completed kidney structure as well as the nephron structure as well as the mechanism of urine formation. Now next time I am going to discuss the last two topics of chapter first, biology, life processes. These are the dialysis and the kidney failure. Till then, goodbye, have a beautiful day.